So should we start now? Okay, ma'am. Okay. So Uh, health. Ma'am, for 2 minutes, can I please switch off my video for 2 minutes? Okay, beta, but please switch it on because Yeah, yeah, without the camera I cannot teach. Okay. yeah. I will. Okay. I will switch on just 2 minutes. I'm just adjusting myself. Health, the ultimate treasure. Yes, ma'am. Okay, so let's start. The chapter is Health, the Ultimate Treasure, which means health is the most valuable thing. Ultimate treasure का मतलब होता है it is the most valuable thing we own. हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है that is our health. So we will study about health. Ultimate treasure का मतलब क्या हुआ? The most valuable thing we own. मोस्ट वैल्यूबल यानी सबसे कीमती. Okay, ma'am. Okay. Then now, what is health? When talking about health, what is health? What is health? Health क्या होती है? See, Uh, yes. बोलिए बेटा, yes. Health is a thing where we are physically, socially, and mentally healthy. Yes, we are physically, socially, and mentally healthy. The three pillars of health are physical health, mental health, and social health. Okay. So, according to WHO, which means World Health Organization, according to WHO, World Health Organization, उन्होंने health की definition क्या दी है? That health is a state of complete physical, mental and social well-being. WHO के according जो health की definition है, health is a complete state of physical, mental and social well-being. Okay, ma'am. Now, what do we mean by physical, mental and social? I will tell you that, but इसके आगे भी एक point होता है that WHO ने ये तो बोला है that health is a complete state of physical, mental and social well-being and not only the absence of disease. हमारे लिए ये होता है ना कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूं, बट दैट इज नॉट करेक्ट. ये सही नहीं होता. दैट पीपल से ना दैट आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूं. नो, इफ वी आर नॉट सिक दैट डज नॉट मीन कि हम हेल्दी भी हैं. हेल्दी होने के लिए हमें फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली हमारा मेंटल स्टेट बहुत कंप्लीट करेक्टली होना चाहिए, सोशल बीइंग यानी हमारी जो सोशल वेलबींग है जहां पर हम आसपास के लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारे बॉन्ड्स और हमारे लोग आसपास कैसे हैं, हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं, वो वाली वेलबींग वो कंप्लीट हेल्थ बनाती है. अगर हम फिजिकली फिट हैं, अगर मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, इफ आई एम नॉट हैविंग फीवर, इफ आई एम नॉट हैविंग एनी सिकनेस और एनी डिजीज, और
पर मैं मेंटली सिक हूँ। मेंटली सिक यानी मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम है लाइफ में, या कोई आप कह सकते हो मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। सो दैट डज नॉट मीन कि मैं हेल्दी हूँ। मेंटल हेल्थ मेरी सही नहीं है तो मैं हेल्दी भी नहीं हूँ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम फिजिकली फिट, इफ आई एम नॉट मेंटली एंड सोशली फिट, अगर मेरे सोशल कनेक्शंस यानी अगर मेरे फैमिली कनेक्शंस में, अगर मेरे फ्रेंडशिप कनेक्शंस में कुछ सही नहीं चल रहा है, सो आई एम नॉट हेल्दी, दैट इज अफेक्टिंग माई बॉडी, वो चीजें मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, तो हम उसे हेल्दी नहीं कहते हैं। Okay, ma'am. तो WHO ने क्या कहा? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग होती है, ना कि अगर एब्सेंस ऑफ डिजीज होती है। क्लियर Yes, रेहान? ma'am. Yes, ma'am. Okay, and the three pillars of health are physical, mental, and So, social. sure. हाँ, कल Yes. छोड़ देगा है। सो फिजिकल हेल्थ मैंने अभी बताया क्या होती है। व्हाट इज फिजिकल हेल्थ, रेहान? टेल मी। Ma'am, physical health is a health where you are physically active, you do exercise, like you are physically strong and active. Yes, we take care of our body. That take care of our body and exercise regularly. And what else? Is there anything else? Taking Uh, care of our body, exercising regularly and maintaining our energy levels, यानी taking good amount of food जो हमारी energy levels को balance कर सके। Maintaining a healthy diet. Yes, maintaining healthy diet. And what is mental? What is mental well-being? My mental means, just as you told me, that like you are not having a tension, or like you are Yes, you like are not having any tension, any trauma, which means you are staying positive. आप positive हो, आपके पास कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, स्टेइंग पॉजिटिव, यू डोंट हैव एनी मेंटल स्ट्रेस, नो मेंटल स्ट्रेस, यू आर स्टेइंग पॉजिटिव एंड आप हेल्दी माइंडसेट मेंटेन कर रहे हो, दैट इज अ मेंटल वेलबींग। एंड देन सोशल, अभी मैंने बताया, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वेलबींग? uh, you are having a good relationship with all your surrounding people. Yes, very good. You are having good social relationships with people around you. सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। Social relationships, adjusting with the peers and the show people in our surroundings, adjusting with the people and the peers. Peers means the friends, the peers means friends, right? तो adjust करना उनके साथ and all is known as social well-being, and all these three things make a healthy person. If we have these three things in us, this that means we are healthy enough. सो नाउ हेल्थ का मतलब समझ आ गया ना अच्छे से? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर साइंटिफिक हेरिटेज। ओह सॉरी, आई रेज द चैप्टर।
learn the definition of health very nicely because this is what comes in exams and Yes, ma'am. teacher जरूर ये पूछता है. Okay. Yes, ma'am. Okay, now we have our scientific heritage. Our scientific heritage, Ayurveda. Ayurveda. See, Ma'am, are we talking in this? I want to talk about Dincharya and Ritucharya. yes, beta, Dincharya and Ritucharya. So, Ayurveda. What is the principle of Ayurveda? हमने, sorry, Ayurveda की spelling मेरी गलत है. So yeah, what is the core principle of Ayurveda or the principle जिस पे आयुर्वेदा चलता है? अभी हमने हेल्थ की एक डेफिनेशन पढ़ी which is the complete state of what was the definition of health? Tell me. The complete state of mental, social, and physical Physical. being where they and not the absence of diseases. Yes. And now आयुर्वेदा का जो कोर प्रिंसिपल होता है, कोर प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इज वेरी सिमिलर. सोचो WHO ने अभी दिया है, बट आयुर्वेदा और आर वैज्ञानिक्स एंड साइंटिस्ट्स, या आप बोल सकते हो उनको वेद लोग जो होते हैं, उन्होंने ये बहुत पहले ही बता दिया था कि जो ट्रू हेल्थ है दैट इज द बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स. उन्होंने क्या बोला था? ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ body, mind, and surroundings. Body means physical health, mind means mental health, and surroundings means social health. So, जो बात WHO ने अभी बताई है हमको, वो आयुर्वेदा ने हमें बहुत पहले ही बता दी थी कि ट्रू हेल्थ वो इंसान जो प्रॉपरली हेल्दी होगा, जिसको हम हेल्दी कह सकते हैं, उसमें बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स होना चाहिए फॉर अ पर्सन टू बी हेल्दी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज being asked in your examinations. Okay, now there are daily and seasonal routines. The daily and seasonal routines. See, daily routine को कहते हैं Yes, दिनचर्या. ma'am. We write it as दिनाचार्य, but हम उसको पढ़ते हैं दिनचर्या है. Yeah, And seasonal routine को हम कहते हैं Ritucharya. ऋतुचर्या. Yes, so daily routine and seasonal routine. अगर हमारे पास हमारी दिनचर्या अच्छी है, यानी हमारी डेली रूटीन अच्छी है, तो हम और हमारी ये ऋतुचर्या यानी हमारी जो सीजनल रूटीन होती है वो अच्छी है, तो इट हेल्प्स अस it helps us maintain a balanced life. A balanced life मतलब a healthy life. A life where we have body, mind and surroundings complete का complete state. वो वाली लाइफ मेंटेन करने में हमें क्या हेल्प करता है? दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, विच इज डेली रूटीन एंड सीजनल रूटीन. क्लियर रेहान? Yes, ma'am. Okay. And now one more thing in Ayurveda is that प्रकृति. प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का उन्होंने एक प्रकृति के बारे में बात करी है
कि हमें फ्रेश होलसम फूड यानी हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, लाइक अगर हम थोड़ा सा ही खाना खा रहे हैं बट हमारे सारे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट यानी सारे विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन एवरीथिंग शुड बी इन आवर डाइट। हम थोड़ा ही खा रहे हैं बट एवरीथिंग शुड बी इन आवर डाइट, दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। So we should have a balanced diet. We should have fresh fruits, fresh vegetables, and we should eat foods that suit our body, suit our प्रकृति, हमारी जो सराउंडिंग्स को जो चीजें सूट करें हमें वो ही खानी चाहिए। सो दैट इज व्हाट आयुर्वेदा टोल्ड अस। बेटा जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी आयुर्वेदा के बारे में। यस, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, होलिस्टिक प्रैक्टिसेस। जो होलिस्टिक प्रैक्टिसेस हमको ये एडवाइस करता है करने को इज योगा मेडिटेशन, restful sleep. A restful sleep is very important. So holistic practices में हमें क्या क्या करना चाहिए? योगा, meditation, and we should have restful sleep. Restful sleeps का मतलब है, इफ आई से कि आई स्लेप्ट फॉर 14 hours टुडे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने रेस्टफुल स्लीप ली है। अगर मैं बोलूं कि मैंने 14 hours सोया आज, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने रेस्टफुल स्लीप ली है। उसका ये मतलब है मैम आई एम नॉट वेल, मैं हेल्थी नहीं हूँ। 8 hours ऑफ स्लीप इज द हेल्दी रूटीन। 8 hours ऑफ स्लीप वी हैव टू टेक, वो हमारी रेस्टफुल स्लीप होती है। पीपल स्लीप 3 hours, पीपल स्लीप 14-15 hours, ये कोई रेस्टफुल स्लीप नहीं होती है। इसको वी डोंट कॉल दिस एज रेस्टफुल स्लीप। तो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, रेस्टफुल स्लीप इज ऑल नोन एज होलिस्टिक प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय आयुर्वेदा और रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदा फॉर ओवरऑल वेल बीइंग। हमारी ओवरऑल वेल बीइंग को सपोर्ट करने के लिए ये सब चीजें रिकमेंड की हैं आयुर्वेदा ने। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? हाउ कैन वी स्टे Rehan, have you understood everything? yes ma'am, whatever you are explaining I can understand. Okay, very good. Okay, नाउ वी हैव हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं? हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? सॉरी, यस रेहान, कैन यू suggest some ways how can we stay healthy? Ma'am, we can stay healthy by eating, by having a balanced diet. We should have a clean surrounding. We should decrease our screen time, and we should go out in nature. Very and good. Good. and and we should also we should do we should go and practice for only half an hour our hobbies that we like, and we should do a 10 to 5 to 10 minutes meditation. वेरी गुड रेहान, आपने तो सारे पॉइंट्स बोल दिए, अब मैं क्या पढ़ाऊं? सो बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी एक हेल्दी जीवन रखने से हम हेल्दी रह सकते हैं। लाइफ स्टाइल हमारी, जो हम जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं वो हमको हेल्दी रखनी चाहिए। लाइक वी शुड हीट अ बैलेंस्ड डाइट। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है? वी शुड हैव बैलेंस्ड डाइट। And what do we have in balanced diet? Fresh fruits, fresh Good vegetables, proteins.
एंड ग्रेन्स, ये सब हमें खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। We should include all the vitamins and all the vitamins and nutrients. Grains. And now the next thing that we should keep in mind to maintain a healthy lifestyle is that we should avoid processed food. We should avoid processed food, fatty, processed, fatty. And what else should we avoid? And what else should we avoid? Tell me. Mom, and eating in balanced Yes. diet. Mom, we should avoid uh, oily things, oily substances, and sugary Yes, substances. oily means processed and all. Fatty भी oily में ही आता है. सो शुगरी फूड नहीं खानी चाहिए. और हमें ड्रिंक्स जो हम पीते नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वी शुड अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल नहीं पीनी चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. हमें बहुत हद तक ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए इफ वी वांट टू स्टे हेल्दी इन आवर लाइफ. सो वी हैव टू स्टे फिजिकली एक्टिव. हम लोग पूरा दिन बेड पे नहीं गुजार सकते. वी शुड बी फिजिकली एक्टिव. वी शुड गो आउट, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ट्राई टू स्टे एक्टिव, प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखे. सो स्टे फिजिकली एक्टिव. हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग आउटडोर्स जाएं, वी शो वी वॉक, वी रन, साइकिलिंग करें, वॉकिंग, रनिंग. सो इस तरह से हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे एंड हम लेजी नहीं होंगे, बिकॉज बीइंग लेजी also means that we are not completely healthy. Now, yeah, आपने एक बात बोली थी, that is a very important thing. Avoid screen time. Avoid screen time. Very good. Avoid screen time. अवॉइड स्क्रीन टाइम एंड गिव टाइम टू आवर हॉबीज. और हमारे नेचर के साथ हमें और टाइम स्पेंड करना चाहिए. स्पेंड टाइम विथ नेचर, स्पेंड टाइम विद द सराउंडिंग्स. एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, हैव प्लेंटी ऑफ स्लीप. प्लेंटी ऑफ स्लीप का मतलब है हैव रेस्टफुल स्लीप. हम लोगों Only को for 8 hours. रेस्टफुल स्लीप होनी चाहिए. सो या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दैट गिव सम वेज हाउ कैन वी स्टे हेल्दी. Write some ways to stay healthy. The question can come in your exam. Write some ways to stay healthy. So आप ये सारे ways लिख सकते हो. And now there is one more, like ये तो healthy lifestyle का था. अब healthy सराउंडिंग यानी कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन से भी हम हेल्दी रह सकते हैं. इफ वी हैव मेंटेन, ये वाली लाइफस्टाइल हमने मेंटेन कर ली, बट हमारा सराउंडिंग्स जो है जहां पर हम रहते हैं वो क्लीन नहीं है और हम अपने आसपास का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सो वी कैन नॉट स्टे परफेक्टली हेल्दी. सो अब हमने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर ली है. नाउ वी विल मूव ऑन टू कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन. ओके, शुड आई रेज दिस? Mom, the on not the second last and the last point. Okay, okay. Mom, in the question in which we have to maintain a health in good surroundings, Mom, in that we can include points like a stagnant water source should be not there near your house. यस, स्टैग्नेंट वाटर यानी रुका हुआ पानी, जहाँ पे Yeah, पानी कलेक्ट हो जाता है ना, वो वाला कहीं पर भी हमारे हाउस में या नियर आवर हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया और जर्म्स इकट्ठा होते हैं. सो दैट इज वाई. यस, वेरी गुड पॉइंट. because it will born diseases like malaria, dengue, and chikungunya यस, because of वहां the पे वायरसेस. यस, वहां पे mosquitoes. वायरसेस होंगे, सो हमारे डिजीजेस लाइक मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब होगा. ओके, गुड. Then
the garbage should not be there near your house, like a garbage. Yeah, garbage should not be there near our house. And Then, the insects or it should be clean, and like there should be no mouse or cockroaches, like not these insects near your, like it can be, but it should not be there. या इट शुड नॉट बी देयर. हमारे पास अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होगी, देयर विल बी नो कलेक्टेड वाटर, देयर विल बी गुड एयर, सो हमारे पास इंसेक्ट एंड ऑल वैसे ही नहीं आएंगे. सो And या, then we should not live in areas where factories or the air polluted cities are there. We should not यस, live एयर पोल्यूटेड डिजीज आर देयर, हमें लंग्स इश्यूज होने लगेंगे. cities, air polluted cities. You should not live in air polluted cities. यस. Then one last point I want to tell you that you should always have a hygiene. यस, Like पर्सनल हाइजीन, वो तो हमने yeah, बात कर ली ना. पर्सनल हाइजीन, क्लीन हेयर, क्लीन नेल्स, क्लीन बॉडी, वी शुड बाथ ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे, सो दैट इज ऑल पर्सनल हाइजीन. वी शुड yes, टेक बाथ डेली. ये सब पर्सनल हाइजीन में आता है. एंड या, इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी. सो एयर एंड वाटर क्वालिटी, सराउंडिंग्स क्लीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एयर एंड वाटर क्वालिटी. एयर एंड वाटर क्वालिटी मतलब अच्छी हवा और अच्छा पानी, सेफ पानी, यानी कि क्लीन एयर एंड सेफ वाटर, क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर ऑल्सो, क्लीन एयर एंड वाटर. yes. एंड जहां पर ये नहीं होगा वहां पे वी कैन हैव डिजीजेस लाइक कफिंग, लंग इन्फेक्शंस, आस्थमा. सो हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एयर एंड वाटर क्वालिटी मेंटेन रखें. ओके. एंड देन वी हैव AQI, we have air quality index, we call it as air quality index. Very important, इसका फुल फॉर्म आ सकता है. Okay. एयर क्वालिटी इंडेक्स. ये AQI इज द टर्म जिससे हम एयर की मतलब एयर का वो चेक करते हैं, लाइक हाउ हेल्दी इज द एयर, हमारी एयर कितनी पोल्यूटेड है और कितनी क्लीन है, वो इससे मेजर करते हैं. जितना हाई AQI होगा उतनी पोल्यूटेड और अनसेफ एयर होगी, जितना हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा पोल्यूटेड एयर होगी. एंड दिल्ली हैज बीन द मोस्ट, दिल्ली हैज द Most greatest AQI registered. Yes. it is said that if you would go in countries like Thailand, Canada, USA, so they say that India is not a country, it is a death bag. Yeah, it is a death bank because have you seen the air quality index? You have seen the AQI levels. It is being increased every single day because of Whereas, our. whereas in other countries like Canada, USA, or any country in South America, not in Asia, but whatever, like not in India, in the neighboring countries, but in Canada, USA, Thailand, so their AQI is near 40 to 50, or max 90. But in India, we have the least AQI till 250. यस, लीस्ट AQI बिकॉज वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखी है. वहाँ पे इस तरह से इतनी व्हीकल्स नहीं यूज होती है. गवर्नमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज टू मेंटेन गुड AQIs. और यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑल्सो इज नॉट पेइंग अटेंशन to the AQIs, increasing AQIs rapidly. AQI increase हो रहा है but there is no proper attention given to the environment. So that is why
we are having these problems, we are facing these problems, and people of India are going abroad and settling there because here it is very difficult to stay healthy and live a healthy life. Because socho, the basic thing like air, we don't have clean air to breathe, and what can we do in that? द ओनली थिंग वी कैन डू है कि हम अपना पार्ट अच्छा कर दे, हम अपना जो हम जो लाइक वी रिड्यूस आर प्लास्टिक वेस्ट, वी रिड्यूस आर ट्रैवल टाइम्स, जिससे पोल्यूशन कम हो जाए, थोड़ी अपनी व्हीकल्स हम थोड़ा वॉक करने लगे। कार पूलिंग, कार पूलिंग का मतलब जानते हो? डू यू नो व्हाट इज कार पूलिंग? Carpooling? यस। No, mom, I don't know about. कार पूलिंग मीन्स कि लाइक अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग बाय कार, I तो मैं can't listen अपने you. ऑफिस में जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी Ma'am, लोग होते हैं, लाइक 4-5 लोग। ma'am, यस you're not audible. बेटा, नाउ एम आई ऑडिबल? Yeah, now you're audible. I can't. ओके। Your voice was coming so low. Okay, so now these all are the things that by following which we can stay healthy. Okay, now अब next thing पे पहुंचते हैं। Have you understood everything, Rehan? Yes, ma'am. Whenever I will have a doubt, I will ask you. Okay. But In till which that, city are you? I am taking class from New Delhi, ma'am. You are in New Delhi. Oh my God. How are you breathing there? Okay, next. That's fine. Okay. अभी तो हमने पढ़ा कि हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, बट अगर हम अनवेल हैं, अगर हम बीमार हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी में क्या क्या साइंस होंगे दैट वी विल नो कि यस वी आर अनवेल, वी आर नॉट हेल्दी? तो जो हमारी बॉडी हमसे कम्युनिकेशन करती है, द बॉडी जो हमारे अंदर की जो जो कुछ भी अंदर हो रहा है, द इंटरनल चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी इज कम्युनिकेटेड टू अस। वो हमारी बॉडी में जो कुछ भी अंदर चल रहा है वो हमारी बॉडी हमको बताने की कोशिश करती है। हमें बहुत जल्दी जल्दी फीवर आने लगेंगे, हमें बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड होने लगेगा। ऑल दिस मीन्स कि हमारी बॉडी अंदर से फिट नहीं है। पेन होगा, टायर्डनेस होगी, डिजीनेस होगी, यानी बात बात पे चक्कर आएगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे। सो दैट इज व्हाट आवर बॉडी इज कम्युनिकेटिंग टू अस कि आप हेल्दी नहीं हो। हमें बहुत बॉडी में पेन होता है, टायर्डनेस हो जाती है, वी आर लेजी, दैट मीन्स दैट वी आर नॉट इंटरनली हेल्दी। सो how will we know that we are not well? Our body will communicate the internal changes to us। हमारी बॉडी जो भी इंटरनल चेंजेस उसमें हो रहे होंगे वो हमारे तक कम्युनिकेट करेगी, और कुछ एक्सटर्नल चीजें हमें होंगी लाइक पेन, बॉडी पेन, टायर्डनेस, dizziness, and something else you can name, Rehan? Uh, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें देगी, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें सिग्नल करेगी कि ये समथिंग इज नॉट रॉन्ग, समथिंग इज नॉट राइट विथ यू। अब कुछ साइंस हमारी बॉडी देगी लाइक फीवर, रैशेस, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। आई एम राइटिंग हाई बीपी, ओके, दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, swelling in our bodies। तो ये कुछ साइंस हमारी बॉडी देगी जिससे हमें पता चलेगा यस समथिंग इज नॉट राइट विथ आवर बॉडी, और हमारे कुछ इंटरनली कुछ चीजें खराब जा रही हैं, वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स चेक्ड। ओके, okay, ma'am.
Now we will have diseases. What are the causes and types of diseases? What are the causes and types of diseases? Where is my duster? So diseases, what are the causes and types? There are different types of diseases and दो टाइप्स की डिसीजेस होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. Wait, Okay, let me ma'am. have water and then we will continue. Okay, no worries. तो सबसे पहले डिजीजेस से क्या समझ आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीजेस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीजेस? Not a virus infection, it is caused by virus. नो, नॉट ऑल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस. सारी डिजीजेस वायरस से नहीं होती हैं. When a normal body like Yes, it affects the normal functioning of our body. हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको अफेक्ट कर देता है और एक दो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स हमारे काम करना बंद कर देते हैं, स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो ठीक से काम नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड डिजीजेस. डिजीजेस क्या होती हैं? अ okay, कंडीशन, learn this definition, very important, a condition that affects the normal a condition that affects the normal working of our body or mind So, it is a condition that affects the normal functioning of our body, normal working of our body or mind when one or more organs stop functioning properly. सो डिजीज उसको बोलते हैं जब हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वर्किंग होती है उसमें कुछ इफेक्ट हो जाता है और कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ठीक से काम नहीं करते, तो वी आर सस्पेक्टेड बाय द डिजीज. ओके. okay, ma'am. One more very important definition which is being asked repeatedly is of pathogens. So Pathogens. take that Have you vector. understood diseases? Can I erase this? Yes.
So what are diseases? Diseases are the condition that affects the normal working of our body, and some organs or one organ or one or more organs stop functioning properly. Now we have pathogens. We have pathogens. पैथोजेंस क्या होता है? Pathogens are the disease causing germs or microorganisms, जो भी viruses, fungi, protozoa, bacteria, ये सब होते हैं, इनको हम बोलते हैं pathogens, and these are the disease causing germs. वायरस को क्या बोलेंगे? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब को हम Please calling बोलेंगे them. pathogens or disease causing germs. Disease causing germs or microorganisms, like fungi is a microorganism. Okay. Yeah, I know. Yeah. Ma'am, are you saying something? Because you're not. Yes, beta. I was saying that what is vectors? Vectors. Okay, yes, I will explain you vectors. Vectors क्या होते हैं? देखो, एक बार पैथोजन समझ लो, सो वेक्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा. देखो, पैथोजन जो भी हम अभी तक हम बोलते थे ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और वन मोर थिंग वाज देयर. यस, वो वर्म्स और पैरासाइट. वर्म्स और पैरासाइट से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक रिंग वर्म and many such diseases are caused by worms and parasites. तो pathogens क्या होते हैं? Disease causing germs or microorganisms. Very important definition. Learn this, okay? Okay, ma'am. Okay. Now let's move on to vectors. Yes, you were asking me about vectors. Vectors are insects or एनिमल्स. अभी तक क्या था? डिजीज कॉजिंग जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पैथोजेंस में क्या था? डिजीज कॉजिंग जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वेक्टर्स में क्या है? वेक्टर्स में The क्या है? इंसेक्ट्स. insects यस or बेटा. animals like they uh, दैट sense कैरी दैट कैरी yeah, the pathogens with them, like mosquitoes. So whenever they bite us, they या दे inject कैरी the virus. पैथोजेंस मींस दे कैरी वायरस विथ देम, राइट? Yes, ma'am. यस. सो वेक्टर्स पैथोजेंस कैरी करते हैं. वेक्टर्स को पैथोजेंस कैरी करते हैं. लाइक अगर मॉस्किटो है तो वो वायरस अपने साथ और कुछ बैक्टीरियाज अपने साथ लेकर घर में घुसेगा. मॉस्किटोज क्या पैथोजेंस लेकर हमारे घर में घुसेंगे, और देन इट विल गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. That carry and transmit pathogens. This is also a very important definition, child. Insects or animals that carry or transmit pathogens and
वेक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये तो पैथोजेंस कैरी करते हैं, यानी ये वायरसेस, बैक्टीरियाज, वर्म्स, ये सब कैरी करते हैं, बट विथआउट गेटिंग without getting sick themselves, यानी अपने आप को बीमार किए बिना ये कर सकते हैं। मींस वो जो वायरसेस जो ये कैरी करते हैं, उन वायरसेस का असर इन वेक्टर्स पर नहीं होता है, वेयर एज हम ह्यूमंस पे हो जाता है। इज दैट क्लियर? बेटा फिर से समझाऊं? No, I can understand. यस, यू अंडरस्टैंड, यस। Yeah. सो इसके Whenever एग्जांपल्स, I'm saying that whenever I will have a doubt, I will tell you. ओके ओके, mosquitoes, house flies एंड रैट्स, रैपिड एनिमल्स जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इन एज वेक्टर्स हमारे घरों में या हमारी बॉडी में पैथोजेंस Ma'am, what is इंजेक्ट कर rabbit देते हैं। animal? यस बेटा, यू आर नॉट What ऑडिबल। is what is a rabbit animal? रैबिस एनिमल नहीं, रैपिड एनिमल्स, It's a rabbit, yeah, rabbit. नॉट रैबिड। So what, ma'am, you're saying rabbit only, I can hear that. RAPID, रैपिड एनिमल्स। It's a rapid, okay. रैपिड एनिमल से उसका तो मतलब समझ ही आ जा रहा है, रैपिड यानी क्विक मूविंग एनिमल्स, क्विक मूविंग एनिमल्स, जो एनिमल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और they are the fastest animals on air, land and water, like rats. Rats are rapid animals. Mosquitoes are rapid animals. Dragonfly, these all are rapid animals. तो ये भी as vectors हमारी घरों में ये लाते हैं। Is that clear? Yeah, okay, ma'am. Okay. Now we have communicable diseases. We have communicable diseases. Communicable diseases क्या होती हैं? Tell me. That diseases that can be caused by like if someone is having a disease, so that communicable disease can spread from one body to another. Yes, communicable disease can spread from one body to another. Yes, very good. And they are normally caused by viruses. Yeah, they are normally caused by pathogens, communicable diseases. Yeah. Okay, so now Caused by pathogens and what else? those they nothing. I now can't get anything more. Spread from person to person contact and और किस चीज से स्प्रेड हो सकते हैं? Ma'am, food, through their food, the man who Spread the via air, food, water. by taking their private things, using their private things. So, communicable disease can caused by pathogens, spread from person to person contact, and spread via air, food, water, and vectors.
तो इन सब चीजों से हमारी बॉडी में पैथोजेन जो हैं वो आते हैं एंड देन वी गेट इन्फेक्टेड। क्लियर? ओके मैम। हेलो मैम। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि वो किस किस चीजों से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, हमारे अंदर ओके। डिजीजेस डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से आ जाते हैं। सो लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स लाइक shaking hands, touching an infected person or an infected surface. Shaking hands, ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। shaking hands, And like sneezing, like in the corona, so sneezing. yeah, sneezing, but I will tell you, wait. Touching infected person or surface, ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यानी अगर हम कोई भी इंफेक्शन वाली चीज से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ये होता है कम्युनिकेबल डिसीज का मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड देन वी हैव इनडायरेक्ट कांटेक्ट। That is non-communicable disease. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नो बेटा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जैसे अगर हमने कोई अपनी पर्सनल आइटम शेयर कर दी। शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक क्लोथिंग, लाइक कोम्स, टावल्स, ये सब शेयर करने से हमारा हमारी बॉडी के भी जो भी इंफेक्शन होंगे वो आपके बॉडी में चले जाएंगे या आपके वाले मेरे में आ जाएंगे। इफ आई एम शेयरिंग योर क्लोथ्स विथ मी, सो दैट इज शेयरिंग personal items like clothing Yes, ma'am. and utensils, also utensils of combs or towels. So that is all indirect contact. Then by air, like an infected person sneezed in the air. मैं एक infected person हूँ supposingly और मैंने sneezing करी and you are there standing in front of me, so the air around us will get infected और same air आप inhale करोगे, so you will also get infected. Clear? By air से कैसे infect हो सकते हैं, communicable disease कैसे spread हो सकती है? Okay, ma'am. एंड देन नेक्स्ट इज बाय फूड एंड वाटर। लाइक अगर हमने कोई कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड खा लिया। कंटामिनेटेड मीन जिनमें ऑलरेडी वायरस एंड बैक्टीरियाज हो, खराब फूड या खराब खाना पानी पी लिया, सो दैट इज वी कैन बी इन्फेक्टेड। सो वो भी एक मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है। देन वेक्टर्स। वेक्टर्स तो मैंने बताया ही है कि वो अपने साथ जर्म्स लाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी, पैरासाइट्स मैंने बताया है व्हाट आर पैरासाइट्स। तो बेटा आई थिंक इट इज जस्ट 4 मिनट फॉर द क्लास और मैंने मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन पूरा पढ़ा दिया है। नाउ टुमारो वी विल डू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देन सम टाइप्स, सम मोर डिजीजेस एंड कॉजेज। सो कल ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। आई होप व्हाट ऑल आई हैव टॉट यू टुडे यू हैव अंडरस्टूड। बेटा एम आई ऑडिबल? Oh, I'm sorry, ma'am. I was muted.
Yes, ma'am. Whatever you explained today, and whatever I had my doubts, you cleared them all. And okay, yeah, perfect. Okay, thank you. So you can join the class tomorrow using, oh, treasure की spelling गलत है. So you can join the class tomorrow at the same time using the same link, okay? Okay, ma'am. Okay, and if you enjoyed the class, if you liked what I have taught you, you can enroll also, okay? Okay, ma'am. Okay, thank you. You can leave the class. Ma'am, it's a 7-day demo, right? Yes, beta. It's a 7-day demo, right? 7-day demo. Yes, you can take मैम 2-3 demos, मैम and then. मुझे बताया गया है, मैम मुझे जो कॉल आई थी ये बताया गया है कि 1 वीक तक डेमो ले सकते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके सर, तो आप 2-3 क्लासेस और ले लीजिए बिकॉज क्लासेस उसके नहीं मैम, पहली क्लास है ना, आज सर. तो फर्स्ट क्लास। Okay, sir, you can take the demos and then you can enroll. Yeah, Okay. that's what I'm saying. First, you will try because if you are offering us like 7 demos, so I will take first 7 demos. Then I will Okay. ask Rehan, and then I will subscribe. Okay. Okay. Okay, And no one thing problem. more, I like to ask, it's a one-to-one, or you are taking in a group, like you are teaching some offline kid also there. Yes, I am. Yes, it is a 1 hour class, 4 to 5. No, no, no. It's a one-to-one. Like some students offline are also sitting there in front of you, or only you are teaching Rehan on. No, I'm just teaching Rehan Alam. Hello. Sir, ma'am, you're not audible to me. जी सर, बताइए आपको क्या इंक्वायरी है सर। आप हमें व्हाट्सएप पे सर कॉल कर सकते हैं जिस नंबर से No, आपने लिंक I'm just asking like